Good evening, ladies and gentlemen. I'm Colonel VT Singh, the Vice Chairperson, World Music for Zena Family. And today, we have a very special guest with us, Dr. Vishal Saxena. It's very rare to find out the qualities of different types in just one person. And when I'm reading the inputs which have been sent by Dr. Vishal Saxena, I'm amazed. There is a plethora of activities going on in his life, which is really very difficult to cover in just one session. To just give you an overview, Dr. Vishal Saxena has been associated with the shipping and logistics industry for over a quarter century and counting. And passionately, since 1997, he has been deeply committed to human mental health and emotional well being, well, which is the need of the hour. Working extensively with the young adults, trained more than 3,000 young adults एंड कॉरपोरेट्स. ये बहुत बड़ी उपलब्धि वाली बात है कि आज के टाइम पे जब इतना स्ट्रेसफुल माहौल रहता है और हम आए दिन देखते रहते हैं कि किसी को स्ट्रेस की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई नीचे गिर गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया. ऐसे में डॉक्टर सक्सेना मेरे ख्याल से एक दूत बन के आए हैं लोगों की जिंदगी के अंदर. डॉक्टर सक्सेना इज ऑल्सो अ फाउंडर ऑफ डिजाइन योर डेस्टिनी वेलनेस सेंटर, एंड he is a certified master coach, a therapist, and interpreter across multiple transformational modalities, which include hypnosis, neuro-linguistic programming, timeline therapy, Ho'oponopono, neuro art and metaphors, and certified trainer from Knowledge and Human Development Authority, Dubai, UAE. Wow. डॉक्टर साहब, एक चीज आप बताइए कि सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगा about your early years in the life, schooling. You are from Lucknow, isn't it? वैसे भी सबसे पहले आप सबको नमस्कार जी. and thank you for inviting me to this beautiful platform of Zena family, जी. and I'm sure I will be able to give a light on whatever I have done in this entire life of mine. And जी. उसके बाद जिसको जो भी सवाल पूछने हैं या किसी को मेरे से काम भी करवाना है can be जी. easily done for the entire Zena family and their relatives. No problems at all. So थैंक यू डॉक्टर साहब. आपसे गुजारिश करूंगा थोड़ा सा पास आ जाइए. यू हैव अ वेरी और हाँ, तो उससे थोड़ा सा. जी जी अब जी. ठीक होगा शायद. हाँ, तो अब ठीक है. बेसिकली व्हाट आई हैव बीन डूइंग इज कि मेरा जितनी स्टडीज हैं वो मेरे जी. उड़ीसा में हुई हैं. आई बेसिकली आई डू कॉल माई सेल्फ ए कंप्लीट इंडियन बिकॉज आई हम्म. वॉज बॉर्न इन द साउथ वाइजैग, brought वाह. up in the east, working in एक्सीलेंट. the north as well as in the west, and then I stayed abroad for last क्या बात है. 21 years. ओके, सो डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे आप उड़ीसा में आपने बताया, तो डज इट इंक्लूड योर स्कूलिंग या कॉलेज, और बाद में जो कुछ भी आपने किया वहीं से किया? Schooling and college, yes, from Odisha. I am ओके. from Stuart School, जो कि काफी पुराना स्कूल है वहाँ का. Then I जी. did my college from Christ College, अच्छा. which is part of Utkal University, हम्म. जहाँ पे मैंने इंग्लिश ऑनर्स में किया था. देन आई अच्छा. डिड माई पहले अन्नामलाई से मैंने डिप्लोमा किया मैनेजमेंट का, फिर बाद में हम्म. डॉक्टरेट किया फ्रॉम अमेरिकन बोर्ड इन बिजनेस ओके. मैनेजमेंट, which was very दैट्स recently done, but ओके yes, डॉक्टर साहब. it was going in the process. फैंटास्टिक डॉक्टर साहब. तो ये बताइए कि दिस काइंड ऑफ अ पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम लॉजिस्टिक्स टू ह्यूमन मेंटल हेल्थ, ये मतलब दो अलग अलग चीजें जो हैं, ये बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है. मैं आज तक मैं आई हैव नेवर कम अक्रॉस एनीवन विद दिस काइंड ऑफ डाइवर्सिफाइड क्वालिफिकेशन. देखिए डॉक्टर आकर साहब, द थिंग इज व्हाट इज बेसिकली टुडे पीपल नीड ऑफ द आर इज द सेम कॉम्बिनेशन. जी. हमारा क्या होता है जीवन में कि वी नॉर्मली वर्क ऑन द एज आई सेड करियर एंड पैशन. हम्म. क्रॉस रोड्स आती हैं, तो क्रॉस रोड हम्म. हमारी जिंदगी में भी आती हैं. जी. आई तो व्हाट आई डिड वाज आई टुक माय करियर फर्स्ट, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान, एब्सोल्युटली राइट. right? And जी. then passion was there. So normally हम्म. when you grow, start your life path, what happens हम्म. is कि people keep their passion aside. हम्म.
And that is the basically the one thing which they should not keep aside, first of all, Absolutely. because passion is your driving force. बिल्कुल बिल्कुल. तो मैं ये कहता था कि ओके, 5 days आई एम वर्किंग ऑन माई करियर, 2 days आई एम वर्किंग ऑन माई पैशन. So Excellent. that is I both blended together, and अच्छा. then this helped me when I was doing corporate training, Wow. because I am from this shipping and logistics, so highly service oriented industry. Yes, yes, And yes. usme then I was training corporates. So in corporates I train Hmm. basically from receptionist till the CEO. So this also helped me a lot, Okay. and in my grooming also, in closing the Wow. deals. In so Wow. whatever I have preaching, I have already performed that. Excellent, excellent. So, डॉक्टर साहब, लॉजिस्टिक्स इज अ वेरी जेनेरिक टर्म. अब जैसे मैं लॉजिस्टिक्स को कैसे देखता हूँ, बीइंग एन आर्मी ऑफिसर, आई सर्व फॉर 30 years. और शायद 13-14 बार मेरी पोस्टिंग हुई फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, घर और सामान को ट्रक में, वो मूवर्स एंड पैकेट टाइप का करके. तो मतलब मेरे लिए लॉजिस्टिक ये चीज होती थी. कोई स्पेशलिटी है, आपने कुछ ऐसा लॉजिस्टिक में कुछ ऐसा किया हो लॉजिस्टिक्स के अंदर? देखिए सर, तब हम लोगों ने जब लॉजिस्टिक्स शुरू की थी, तब लॉजिस्टिक्स बस, हालांकि लॉजिस्टिक्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिजनेस इन द एंटायर वर्ल्ड. इट जी जी. स्टार्टेड इन 3000 BCE के टाइम से शुरू है, ओह माय गॉड. एंड इट इज इंटरेस्टिंग. स्टिल कंटिन्यूइंग एंड इट स्टिल कंटिन्यू. जी बट यस, जी. इट हैज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द centuries. ओके. करेक्ट. सो नाउ व्हाट हैपेंस विद अस इज बेसिकली, जो आपने बताया रिलोकेशन जिसको हम कहते हैं फ्रॉम वन जी एंड टू अदर, एक जी. डोमेस्टिक होता है, एक इंटरनेशनल होता है. जी. So logistics have a lot of verticals. ओके. ओके. So logistics is not confined to things. Logistics is basically moving globally and locally also. हम्म. Suppose a person wants to move from Lucknow, let's say, हम्म. हम्म. to UK, Thamesport. जी. So first he will move it on the land. हम्म. Then he comes to Nhava Sheva or Mundra. And from हम्म. there he takes a sea, then it goes, or an air cargo, depending upon the commodity he's working upon, which अच्छा. in logistics language is called multimodal transport operations. ओके. So that is इंटरेस्टिंग. the basically thing. So relocation is one part. Then we हम्म. have containerized business, when we have clearance business, then we have air cargo, sea air cargo, combinations are heavy. And then we go into heavy lifts, break bulk, and then it carry on. So ओके. that is what the logistics is all about. So we cover entire all the verticals which I was heading, from अच्छा अच्छा. warehousing and everything we were heading. And हमारे clients were very nice clients, जी. oil and gas थे, rails थी, उसके बाद आपके distribution ships थी, buyer consolidations थे, बहुत सारे verticals हैं उसमें. बहुत सही सर. सो यू आर वेरी मच करेंटली एम्प्लॉयड विद दिस लॉजिस्टिक्स थिंग, और पैशन तो आप फॉलो कर ही रहे हैं. Logistics, I'm still confined, working on to it, because I do a niche market in logistics. ओके Because डॉक्टर साहब. I started with a like CBM cubic meter वाला business काम से, which was अच्छा. LCL cargo. But हम्म. now I do only projects which is rigs, aircrafts. And then since you are into defense, या. I have moved a lot of missiles, a lot अच्छा. of aircraft carriers on ship, and then Coast ओके. Guard के boats with all the peripherals and everything. We have been doing it a lot. ये तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड चीज है, बिकॉज इट हैज टू बी हैंडल्ड, स्पेशली व्हेन आई एम एन एविएटर माई सेल्फ. जहाज की कोई भी चीज हो बड़े संभाल के. ऐसी बोट है, मतलब हैंडलिंग भी, खाली शिफ्ट ही नहीं, उसकी हैंडलिंग भी फिर आप लोग ऐसे करते होंगे इन अ वेरी, आई एम सर श्योर. हमारे लिए रोज एक नया पन्ना खुलता है. एंड रोज अगर मैं आपको बताऊं तो आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएगा. टाइम है तो आई कैन गिव यू टू जी किस्सास ऑफ माइन. जी जी. वन, व्हेन आई वाज मूविंग मोनोरेल फॉर मुंबई, जब अच्छा. मुंबई में मोनोरेल का बस डॉक्यूमेंट साइन हुए थे, अच्छा डॉक्टर साहब. सो आई वाज कमिंग इनटू इट. सो देन आई हैड कम टू डू द टोपोग्राफी फ्रॉम नावा शिवा पोर्ट टू वडाला, जहाँ पे इनका डिपो बन रहा था. ओके. सो वी वर टेकिंग द फोटोग्राफ्स एज वी हैड टू सबमिट टू द बेसिकली जी. SCOMI in Malaysia. ओके. So, because they were the people who were manufacturing monorails for Mumbai monorail railway. So when I was coming, I was taking photographs of my friend. I said, okay, we'll go on bike, not on car. तो बाइक से हम फोटो ले रहे थे. ओके. As I क्रॉस सायन क्रॉस किया ही था मैंने, तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया. अच्छा. He took us to a police station. He said, brother, come here. कि आप फोटो ले रहे, you are doing some different activities. ओह माय गॉड. So we said, no, we are working on monorail.
तो हाँ वो कहता है कि मोनोरेल क्या। हाँ, तो उनको पता ही नहीं था। पता ही नहीं। और उन्होंने हमें पुलिस स्टेशन में बिठाए रखा 5-6 घंटे, बैठे ओह रहे। माय एंड देन गॉड। वी शोड देम द लैपटॉप से। मैंने बोला देखो ये चीज़ें आ रही है। बोलता हमको नहीं पता। मैंने बोला ये जो एड्रेस है वहाँ पे जाके देखो, ये पूरी लैंड आपकी क्लियर हो गई है मोनोरेल के लिए। ओके। तो फिर वो बोले चलो हमारे साथ। मैंने बोला हमको बेसिकली लेके आना है। बट अब हम्म, पुल्स वुल्स सारे हैं ना, उसके ऊपर से ट्रेन का वो कोचेस जाएंगे। सही बात है जी। एंड देन ही सॉ एंड इट टुक, जो काम हमारा हो जाता वो अगले दिन तक चलता रहा, बिकॉज दे वर नॉट ओके, अंडरस्टैंडिंग इट। बिल्कुल सही बात। सो दैट वाज अ किस्सा। तो ब्लिसफुली ये कम, इग्नोरेंट। हाँ। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। समटाइम्स यू डू टोपोग्राफीज एंड हाँ। पता चलता है अचानक से एक, जैसे नॉर्मली 5.5 एक रोड से एक ब्रिज की लेंथ हाइट होती है। हम्म। तो हम लोग ने देख के दिया एवरीथिंग इज फाइन। और हम्म जिस दिन एक्चुअल वो कार्गो मूव हो रहा था तो उस दिन उन्होंने स्कैप फोल्डिंग दे के वो हम्म। ब्रिज की मरम्मत शुरू हो गई, तो हाइट हो गई 4.5। ओ, तो देन यू आर अगेन स्टक, देन यू टेक अ डिटूर एंड एवरीथिंग, और शिप आ रहा होता है टाइम पे। बिल्कुल सही तो बात है। बहुत सारी चीजें होती हैं एंड देन वी एंजॉय इट। एंड देन वंडरफुल, इट आई इज अ मीन ब्यूटीफुल बहुत ही एक्सपीरियंस वी कैन। चैलेंजिंग चीज है ये भी अपने आप में, इतनी भारी सर, भारी चीजें। मैं बेसिकली बताऊं सर, जैसे आपने जैसे मुझे पूछा था ना कि कॉर्पोरेट आपका शिपिंग एंड एनएलपी जी यूज करते हैं, जी तो जी। हम लोग अपनी डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड हटा देते हैं। अच्छा अच्छा। तो हम लोग जब बात करते हैं क्लाइंट से भी या किसी से भी, हम चैलेंजिंग वर्ड ही हटा देते हैं। वाह, मतलब दिस इज अ ब्यूटीफुल वर्क विच इज गोइंग टू गिव अस अ न्यू एक्सपीरियंस। बहुत सही बात तो है, इट चैलेंजिंग एड्स वर्ड ही टू। हट गया। तो एनएलपी हमारा काम आ गया। आपका काम आ गया। वही हम करवाते हैं सर। तो सेकंड पार्ट में डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि ये दिस शिफ्ट फ्रॉम योर, आई वोंट से नाउ पैराडाइम शिफ्ट, बिकॉज उसमें तो क्या आता है कि आप बिल्कुल ही हट के उसमें आ जाता है, यू आर वेरी मच लॉजिस्टिक्स मैन। लेकिन क्या प्रेरणा थी, व्हाट बेसिकली इंस्पायर्ड यू टू गेट इनटू दिस ह्यूमन मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग? देखिए सर, वॉट एवर वॉज द मेन स्टार्टेड विद माई फादर। विद योर फादर, ओके। हाँ, ओके दो ही जी वॉज इन, ही वॉज डीआरएम फॉर साउथ ईस्टर्न रेलवेज। जी। एंड व्हाट वाज देयर वाज बेसिकली ही वाज अ वेरी गुड palmist. ओके, सो वाओ। उन्होंने किताब भी लिखी हुई है जो मैं सोच रहा हूँ पब्लिश कराऊंगा। जरूर सो जी। व्हाट आई सेड वाज वेरी सिंपल। आई सॉ पीपल कमिंग टू हिम, हम्म टॉकिंग टू हिम एंड हम्म। टॉकिंग अबाउट द डे टू, हमारा क्या होगा हमारा क्या नहीं होगा, एवरीबडी वाज टॉकिंग। जी सो ओके, वो आप बचपन से सुनते जाते हैं। जी। तो दैट बेसिकली गिव्स अ प्लेस वेयर यू कैन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। हम्म ठीक है, उस टाइम यूट्यूब वगैरह तो थे ही नहीं। हम्म तो आप उसी से आप नॉलेज ग्रेस्प करते हैं। एंड देन टू स्टैंड आउट अमंग द क्राउड वी स्टार्टेड रीडिंग लिंडा गॉडमैन, जो उस टाइम आती थी कॉलेज के टाइम में। आई नो, सो सही। लिंडा गवर्नमेंट पढ़नी शुरू करी हम लोगों ने। उसके बाद सिर्फ चस्का चढ़ना शुरू हुआ कि व्हाट आर पीपल टॉकिंग अबाउट, बिकॉज यस, करेक्ट। एस्ट्रोलॉजी ऑलवेज हैड लॉट ऑफ मैथमेटिक्स एंड जियोग्राफी, सो आई सेड यस लेट इज बी इट नॉट माय कप ऑफ टी। बट वी वर गोइंग इन दिस बेसिकली, एंड दिस इज वेयर उस टाइम में अपनी जो बॉम्बे की मूवीज हैं, इंडियन जी। मूवीज, उसमें वो पेंडुलम दिखा के चोरी हो जाती थी। सो दैट गॉट अगेन फैसिनेशन, ये क्या होता है। तो लोग कुछ कटोरियां घुमाते थे आत्मा बुलाने के लिए। हाँ हाँ, प्लेनचेट एंड ऑल दैट। हाँ, तो वो सब चलता था उस टाइम पे, बहुत अच्छा। जी, एंड दिस बेसिकली गॉट मोर इन टू मी। तो उसके बाद हम लोगों ने हिप्नोसिस सबसे पहले मैंने किया। मतलब आपने एक फॉर्मल कोर्स किया इसके ऊपर, हाँ, हिप्नोसिस? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हिप्नोसाइंस से कोर्स किया। उसके बाद कोई हमसे बात नहीं करता था कि ये किसी की आंखों में देखे तो हिप्नोटाइज करके पैसे ले जाएगा। तब तक ही, अभी तक अब जाके बहुत ये चलने लगा है, उस टाइम तो था नहीं। नहीं तो नहीं। बट यस, वी केम टू नो, देन वी स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर आवर ओन डेवलपमेंट, एक्सलेंट। सेल्फ हिप्नोसिस। सेल्फ सो हिप्नोसिस, अच्छा। हाँ, तो सेल्फ हिप्नोसिस जब करना शुरू किया, सो जी। वो आपको बहुत अच्छा ग्रेजुएट करता है टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। ओके ओके। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कर्नल साहब, आप लोग ने बहुत दुनिया देखी है, हम भी देख रहे हैं। जी। व्हाट आर द टू थिंग्स विच पीपल आर नॉर्मली स्ट्रगलिंग फॉर, आप बताएं। डॉक्टर साहब, एक तो मतलब इंटरनल स्ट्रगल उनकी चलती ही रहती है, और बाकी जो रोजी रोटी वाली स्ट्रगल है, सो दैट दे कैन कीप द फैमिली रनिंग स्मूथली टू द राइट। एक्सटेंट पॉसिबल, एंड बैलेंस रखें, मतलब कहते हैं ना कि चिक चिक से थोड़ा दूर रहें। इसी में देखिए सर, जिंदगी करेक्ट। बेसिकली हमारी जिंदगी में है। एक चीज सबसे बड़ा अहम, दो चीजें जो बहुत अहम रोल करती हैं, जी। इस बेसिकली क्या कहेंगे लोग। ओ, लोग क्या राइट, सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे। वी ऑपरेट थ्रू दैट हम्म, एंड मैक्सिमम पीपल आर ऑपरेटिंग थ्रू दैट।
जी, और डॉक्टर साहब। दूसरा, वी आर ऑपरेटिंग आउटसाइड इनसाइड। जी, आउट। हम्म। बिकॉज क्या होता है कि अब आपने सपोज एक ड्रीम देखी जी। that you want to accomplish. I am not talking about goals. Huh? I do not जी। preach goals. I preach या। accomplishment. जी। तो accomplish करने के लिए आपने देखी एक ड्रीम। हम्म। अब आप जब शुरू होते हैं, आप बेसिकली दूसरों से पूछते हैं। करेक्ट। और जब आप दूसरों से पूछते हैं, व्हाट हैपेंस, वो अपनी स्टोरी सुनाते हैं। ओ और आपका जो रोड मैप है, आपका जो हम्म। ड्रीम मैप है, हम्म। वो गया कहीं और। आप उनके रोड मैप से ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। Oh, which करेक्ट? is totally wrong. Which is totally wrong. So in 97, I started three main principles हम्म। for myself also and for हम्म। others also, I would like to say. जी। If you note these three principles of life, जी, आपकी लाइफ बहुत अलग हो जाएगी। बताइए। First principle is every action of yours has a conditioning. एवरी एक्शन ऑफ Action, योर्स एज अ। conditioning. अच्छा। हाँ, इसको मैं अगर और डिटेल में बता जी। दूंगा। जी, और थोड़ा सा माइक पास लाइए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये। हाँ। हाँ, every thing, action basically has a conditioning. हम्म। Every thought हम्म। has a root. ओके, यस। 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 And your emotion, your health is basically depending upon your emotional well-being. यानी फिजिकल हेल्थ हमारी इमोशनल उस पे करेगी। जी बिल्कुल। बिल्कुल। How एब्सोल्युटली। much extrovert that person may be, he will have a close place in the heart which he would जी। have forgotten it, क्योंकि वो इतनी ओ। layers of चीजें बनती रहती हैं। जी। But that is there, and introvert की तो होती ही है। होती है, वो तो होती है। तो हमारा जैसे एक्शन है हमारा, अगर हम उसको रिवर्स में लेके चलें, हम्म। तो आप क्यों कंडीशनिंग होता है? योर एक्शन इज बेसिकली आउटकम ऑफ व्हाट? आपके थॉट्स हैं, उसी से आप नहीं एक्शन नहीं, कर। आपका जो एक्शन होता है वो आपके बिहेवियर से रिलेट होता है। एब्सोल्युटली। करेक्ट? जी। जी। And जी। your behavior is related to your state of mind. स्टेट ऑफ माइंड। बिल्कुल सही And कहा। your state of mind is जी। depending upon your conditioning. ओके। So the entire people whom have been therapy दी है, guiding है, coach है, सब कुछ है, everybody works on that. हम्म। एंड वो फिर कहते हैं हमारी जिंदगी ऐसी ही है, हमारा लाइफ पैटर्न ऐसा ही है। तभी मेरी ओ। कंपनी का नाम जो है डिजाइन योर डेस्टिनी है, विच इज ओके। एंडिंग विद एन आई नॉट अ वाई। हाँ, दिस इज वेरी स्ट्रेंज, मुझे लगा स्पेलिंग मिस्टेक है। नहीं, तभी मैंने रखा आई, बिकॉज इट इज अबाउट मी, इट इज नॉट अबाउट वाई शुड आई आस्क अ क्वेश्चन टू माई सेल्फ। वंडरफुल। वंडरफुल। सो ओके। अगर आप देखें तो वी बेसिकली रीस्क्रिप्ट एवरीथिंग। ओके। सो विद hypnosis, which is a very good tool, you हम्म। can rescript your life. हम्म। You can past life भी करते हैं और normal life भी करते हैं। You can ओके। rescript your life, you can transform yourself that way the things are born. Because हमारा जितना भी सोच है, हमारे हम्म। actions हैं, they हम्म। all are being defined. A blueprint has been created हम्म। from your time you were in the womb of your mother till 14 years of age. ओके। So whatever you have gone through जी। becomes your life pattern. ओके। वेरी ये सब इंटरेस्टिंग। आदमी का है। तो तभी आपका चीजें बदलती हैं। इफ आई हैव टू आस्क यू, हम्म। डॉक्टर साहब, कर्नल साहब, कि व्हाट इज अ प्रॉब्लम? व्हाट इज। अ प्रॉब्लम, बिकॉज आपकी जो प्रॉब्लम होगी एक ही, वो बी की प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई बहन की प्रॉब्लम एक नहीं होगी। हाँ, सरकमस्टांसेस, कंडीशन अलग अलग हैं। सब होती है ना। तो सो व्हाट इज अ प्रॉब्लम? आई थिंक प्रॉब्लम इज समथिंग समथिंग जो आपको परेशान कर रही है, आप उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज मुझे तंग कर रही है। हो सकता है छोटी कोई बात हो, और हो सकता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो कोई। देखिए सर, अ जी। प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम वेयर इमोशंस आर अटैच्ड। ओ, इमोशंस आर अटैच्ड। ओके। ठीक है? व्हेन यू हैव अ इमोशन अटैच्ड टू अ प्रॉब्लम, यू कैन नॉट सी बियॉन्ड दैट। यस। अ प्रॉब्लम कम्स विद अ सॉल्यूशन, बट आप इमोशनली इतना अटैच हो जाते हैं। अगर आपको मैं गूगल के हिसाब से बताऊं, अगर आप, लेट्स से, आप एक रास्ता खो गए हैं जंगल में, रास्ता नहीं मिल रहा है, परेशान। सो व्हाट हैपेंस, अगर आप जा रहे हैं प्लेन से, जैसे आप ऊपर उठेंगे थोड़ा सा आपको रास्ते दिखने शुरू हो जाते हैं।
ये तो बात सही है, सही बात है। और ऊपर उठते हैं और क्लियर नजर आते हैं, और यस, ऊपर यस। नजर आते हैं तो आप ऊपर से देखते हैं, अरे ट्रेन नजर आनी शुरू हो जाती है, एंड इट इज इजीली, अरे हम कर सकते हैं। ये बट कर व्हाट सकते। हैपेंस हियर इज, इसमें आदमी फंस जाता है। So हाँ। if you remove a emotion out from your problem, you will हम्म, immediately see that a problem will be sorted out like this. तो Mhm. डॉक्टर साहब, ये जो आप बता रहे हैं कि जैसे ही इमोशंस से अपने आप को अलग, तो ये मतलब ये बड़ा अजीब प्रोसेस है, कैसे हम उसको डिटैच करेंगे? बिकॉज एज ए ह्यूमन बीइंग हम सब इमोशनल हैं। सर हम सब इमोशनल हैं, जी। मगर हमारे जो इमोशंस हैं वो कहाँ जी। से आए? अगेन कंडीशनिंग, कंडीशनिंग से आए। राइट? आज ओके। की डेट में इमोशंस हम लोग समझते नहीं हैं, हम लोग जी। उस पर राय बना लेते हैं। बिकॉज इन टुडेज वर्ल्ड जी। पीपल hear from their eyes and see from their ears. ओ माय गॉड, ये तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड अफेयर है। हाँ, तो हम हीलिंग की दुनिया में ये होता है, बिकॉज आपने कुछ सुना, आपने उसको विजुअलाइज कर लिया, ओ, एन ओपिनियन आपने फॉर्म आंख से करने देखा, से। आपने कुछ आंख से देखा ना, अच्छा ये ऐसा ऐसा है, उसका मतलब ये, उसका मतलब ये, उसका मतलब ये, आप अपने वर्ड्स, अपनी नॉइज, अपने मन की बातें सब आप करने लगते हैं। ओके, दैट्स हाउ, बिल्कुल सही तो कहा आपने। आपने जो देखा, तो वो जो देखा वो आपने हियर हो गया, विजुअलाइजेशन, एंड देन यू स्टार्ट रिकैलिब्रेटिंग इट। तो आपने हियर फ्रॉम योर आइज, एंड देन उसमें आप मसाला मिर्च सब जोड़ के हियर में करके आप अपना एक पिक्चर बना देते हैं, तो एंड यानी यू वो, प्रेजेंट इट। विच में बी a totally wrong picture about Yes, something. that is why people are not able to achieve their goals. That is why I said you Okay. should achieve your accomplishments. And then I have done people to tell them, do not focus on your to-do list, focus on your outcomes. लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, जी बोलिए। हम सभी लोग आज के इस बिजी माहौल में या तो सोचते हैं, या बहुत ही मेथोडिकल हो तो एक छोटे से चिट के ऊपर लिख लेते हैं टू डू लिस्ट, कि आज मैं यहाँ जाऊंगा, ये करूंगा, बाय इवनिंग 6 PM मुझको ये कर लेना है, ताकि एक सीक्वेंस भी याद रहे, और हम जैसे जो भुलक्कड़ लोग होते हैं उनके लिए इट कम्स वेरी हैंडी। मतलब टू डू लिस्ट का मैं यही मान के चलता हूँ। बिल्कुल, सब मानते हैं सर, मगर ये नहीं मानना चाहिए। आज से जितने भी सुनेंगे इस वीडियो को, जी। जो भी करेंगे, मेरा वीडियो भी है यूट्यूब पे इसके ऊपर, वाह, यू वाह, स्क्रैप अवे योर टू डू लिस्ट। अब मैं आपको इसका स्क्रैप अवे नॉर्मल, योर टू डू लिस्ट, अच्छा, यस, ओके। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल जी। रिलेटेड टू योर किचन, जी। एंड देन यू कैन मैच इट। जी। किचन में क्या होता है कि आपसे तो कुछ खाने का मन होता है, तो आपको मसाले याद आते हैं कि खाने का मन आता है कि आज हमने, अगर वेजिटेरियन है तो कुछ पनीर से रिलेटेड बोल दिया वहां अल्टीमेटली पे, हाँ, हाँ, सामने एक पीले रंग का बोल, उसमें बटर पनीर, बस ये नजर आ रहा है। करेक्ट? हाँ। अच्छा, ये लेके चलिए, दिस इज द आउटकम यू आर लुकिंग फॉर। जी। जी। ठीक है, लाइकवाइज आई जस्ट कनेक्ट यू टू द कॉर्पोरेट। अच्छा। व्हेन यू गो इनटू अ कॉर्पोरेट, यू मीट योर बॉस, यस। ही विल से आज आई हैड गिवन यू दिस वर्क, हुआ कि नहीं हुआ? That's it. जी। 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 He has given you outcome which जी। you have to perform, but you're not, he will just ask you whether you performed or not. जी डॉक्टर साहब। ठीक है। अच्छा, आप जब आपने कुछ खाने में, अगर लेट्स से पनीर, बटर पनीर की बात करी, जी। ठीक है, अब आप वो बनाने के लिए तो आपका आउटकम पे आप फोकस करते हैं, टू डू ऑटोमेटिकली आ जाता है। ओके। सी, इफ यू फोकस ऑन टू डू, आपका जो माइंड है इट विल ऑलवेज बी डिफोकस्ड। अच्छा। और जब आपको उसी तरीके से, अगर आप अपने बॉस के पास जाते हैं या सीईओ के पास जाते हैं, वो बोलेंगे हाँ भाई ये काम हुआ, आप बोलते नहीं सर सुबह मैंने ये किया, मैंने ये किया, वो बोलेंगे सीधा एक आंसर बताओ, वेदर यू डिड इट हाँ, और नॉट। कहानी मत बताओ, बिल्कुल सही कहानी मत बात बताओ, तो कहानी इज टू डू, है। अच्छा। एंड आउटकम इज व्हाट योर बॉस इज आस्किंग यू, और वेदर यू वांट टू डू इन योर लाइफ। यस। सो व्हेन यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, आई हैव टू अचीव दिस, दैट्स इट। टू डू ऑटोमेटिकली आपको जो सबकॉन्शियस माइंड है अरेंज कर देगा। if एक्सीलेंट you डॉक्टर if you साहब। practice it for around 7 days in a row, हम्म, right? Outcome, I want this as outcome, I want this as outcome, I want this as outcome. Relax and just focus on your outcome, and you will see the shift in your thought process. To do automatically आपका माइंड ले आएगा, तो मिर्च मसाला सब्जी जीरा धनिया जो भी लाना है वो सब ले आएगा। दे विल फॉल इनटू प्लेस दे विल ऑटोमेटिकली। फॉल इनटू प्लेस, और आप टू डू करते रहेंगे, सो माइंड डज नॉट नो व्हाट इज द आउटकम। क्या बात है। तो अब डॉक्टर आपकी, साहब, ये दिस इज क्या व्हाट वही यू, चीज है, यानी हम जैसे आर्मी के अंदर भी हमारी एक अपनी मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, उसमें जी भी हम एक बोलते हैं कि टर्मिनल परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव,
कि Yes. ये है, कि हमको ये चीज अचीव करनी है, तो उसके हम्म। हिसाब से फिर हमारे क्या क्या छोटे छोटे स्टेप्स हैं, बेबी स्टेप्स, ये ट्रेनिंग है, वेपन ट्रेनिंग करनी है, ये करना है, फिजिकल फिटनेस, मेंटल रोबस्टनेस। तो यस, क्या एनालॉजी है इस किस्म की कोई चीज कि जब हम ये बात सब करते यही है हैं? सर। देखिए आपके, देखो आपको कहा गया कि लेट्स आई गिव यू माय एग्जांपल। जी आई हैव, आई एम सिटिंग इन अ, अभी आप देखिए, आई जस्ट ब्लेंड बोथ माय लॉजिस्टिक्स एंड विद द एनएलपी हिप्नोसिस एंड व्हाट माय दिस जी थिंग्स आर जी देयर। नाउ आई गो एंड मीट अ पर्सन, आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माइन जी व्हेन आई डॉक्टर हैड साहब। गॉन टू एकर कवाना। एकर ओके कवाना आर द पीपल हु आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ऑयल रिग्स। ओके ओके। Okay, they came and told me कि we want to move this particular, जिसको वो रिग को क्रिसमस ट्री बुलाते हैं, I have to move it from Port Klang to Kakinada. ठीक। Correct? हम्म। उसने पूछा, how will you do it is your problem. ओके Whether you can do it or not, I want a ship on so and so date, 3 weeks from now, I have to move it. Whether you can ठीक। perform it, yes, I can perform it. Okay, फिर कोटेशन वगैरह आता है। सो ओके हम लोग जो बेसिकली किसी से बड़े से हायर अथॉरिटी से मिलने से कतराते हैं, वो जी इसलिए कतराते हैं कि वो आउटकम पूछते हैं, और बिल्कुल सही हम बात। एज अ पर्सन हम टू डू बता रहे हैं। और अगर हाँ हम आउटकम लेके सोचें, अगर उसने बोला कि ये काम होगा, नो सर इट इज नॉट हैपन टिल डेट, द प्रोसेस इज इन फ्लो, खत्म काम। वो प्रोसेस नहीं ओके पूछता। और जब हाँ आप टू आउटकम लेके चलेंगे, सपोज यू हैव टू डिलीवर समथिंग ऑन लेट्स से 3 May 2025, जी सो आप फोकस करिए, माई आउटकम हैज टू बी ऑन 3 May 2025, आई हैव टू डू दिस, हम्म, दिस इज माई अकम्पलिशमेंट। आप हम्म, देखिएगा आज से ही आपके चीजें शुरू हो जाती हैं। आई विल गिव ओके यू अनदर सिंपलर एग्जांपल। जी डॉक्टर साहब। आप लोग ने देखा होगा बचपन में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हमें आंसर नहीं हो पाते थे, हाँ होता, यस राइट? यस अब आप हाँ सो जाते थे हाँ और सुबह उठ के वो हो जाते थे। हाँ वो बिल्कुल सही कैसे बात। होते थे? वो कैसे होते थे? सो आई योर टोटली माइंड इज बेसिकली सो स्ट्रांग, our subconscious mind is 6,000 times stronger than the conscious mind. ओ माय गॉड ओ And माय गॉड subconscious mind is only 10 and 12%. जी Subconscious mind is 90 to 88 to 90%, 6,000 times faster. माय गॉड तो सबकॉन्शियस माइंड जी। आपको इमीडिएटली ढूंढ के लाना शुरू कर देता है, वो जिक्सॉ अच्छा पजल यानी सॉल्व हम कर। सो रहे हैं, मतलब सोती हुई अवस्था में भी वो चीज काम करती रहेगी बैकग्राउंड में, इट्स लाइक ए बिल्कुल बैकग्राउंड प्रोसेसिंग। बिल्कुल, यस सर। अच्छा बेसिकली आपको जो आपने आंखें बंद करी, कॉन्शियस माइंड खलास। जी ओके। उसके बाद अगर आप देखिए, सब हाँ आई कैन रिलेट दिस वेरी सिंपल सिंपल थिंग। जी अगर मैं, हमारा जो आंखें हैं, जी 5 सेंसेस में हमारी आंखें 1.1 मिलियन मैसेज यूनिट्स पर सेकंड लेती हैं, माय गॉड दैट्स ट्रेमेंडस बैंडविड्थ। बैंडविड्थ, जिसमें हमारा जो कॉन्शियस माइंड सिर्फ 50 रजिस्टर करता है। ओह ओह तो कितना उस कमल के चलता है, और उसको क्लियर होने के बाद सबकॉन्शियस माइंड में भेजता है। जी डॉक्टर साहब। क्लियर? हम्म, तो अब वो उसके लिए सब कुछ सच है, सबकॉन्शियस इट्स लाइक अ वाटर फिल्टर। आपने पानी फिल्टर में भरा, फिल्टर हुआ, हाँ नीचे जो पानी आया साफ आया। साफ है हाँ। ठीक है, उसी जी तरीके से हमारा सारा वर्क प्रोसेस भी चलता है। अब ओ आपका जो, क्योंकि 6,000 टाइम फास्टर है, वो मैनिफेस्ट हाँ उतनी जल्दी करेगा, और यस आपकी जिंदगी तभी अगर आप देखें, लोगों से पूछे जो मेडिटेशन करते हैं, जी वो जैसे ही आंख बंद करते हैं, उनकी याद दिमाग में पिक्चरें आनी शुरू हो जाती हैं। जी 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 So the eyes, which are consciously when they are open, they are जी looking at these message units. When एब्सोल्युटली you consciously close them, they are looking inwards to the things which are stored in your subconscious. ओके ओके That is where the things start. So वंडरफुल हमारा सब कुछ जो आउटकम है, it has to be properly measured, understood, and then without logical mind, without proper English grammar, without any हाँ proper हाँ Hindi grammar, nothing ये of सब that नहीं sort. It is लगाना very पड़ता simple. जी You just look into it, हाँ you decided the outcome, and then हाँ you see. You will see, जैसे तो फिर आप किसी से भी मीटिंग करने जाए, आउटकम यस दिस इज व्हाट इट इज, वो आपसे टू डू नहीं पूछेगा। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, आदमी इतना पोथा लेके जाता है, हाँ अपने सेक्रेटरी वेक्रेटरी सबको लेके जाता है, यू डू दिस, वो होता नहीं, नहीं, दिस इज द आउटकम, यू वांटेड दिस इज गिवन टू यू, थैंक यू वेरी मच, एंड इज हैप्पी। इज ही डज नॉट नो कि पीछे क्या हो रहा है। आपने स्कूटर की चाबी दी, जी हाँ आपने बटन दबाया बाइक का,
हम्म, अपने आप इतने सारे मशीन पार्ट्स घूम रहे हैं, आपको क्या पता, आपने तो एक्सीलेटर दिया, अब चल दिए। बिल्कुल सही बात है। वही है जिंदगी। क्या बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, दैट टेक्स मी टू अनदर इंटरेस्टिंग क्वालिफिकेशन ऑफ योर्स, टाइम लाइन थेरेपी, जिसमें कि आप सर्टिफाइड हैं इन आर्ट ऑफ इमोशनल टाइम लाइन हीलिंग। टाइम लाइन थेरेपी मतलब क्या है, एज वगैरह कुछ है? जी साहब, बेसिकली अच्छा, क्या होता है, जी हिप्नोसिस में हम लोग कहते हैं रिग्रेशंस, जी और जब हम पीछे चले जाते हैं तो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस, जी। which is some religion they believe, some religion do not believe. अच्छा, Correct? ओके। And timeline therapy is from the US. We are certified for that, where we can go into our timeline, आवर ओन टाइम लाइन। own timeline. आप अच्छा, जाएंगे till the time you were in a womb, then understand things and clear everything so that your future does not occur the same way. ओ, Okay, so this is one part of it. Where जी what happens is कि I'll just give you, when एक बार हम लोग therapy दे रहे थे, here three things are there. I'll tell you how. जी I डॉक्टर was साहब। giving a therapy to a person who was said always money will bring me bad family life. ओके, He was a person from Jordan. ओके, ठीक है, so हमने बोला जी why you are saying so, बोलता no I feel that way. So sure, since he was from the Muslim religion, he did not believe in past life. So he said okay we'll not do it, we'll go for timeline. He said fine. तो हम लेके चले गए, लेते 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 he reached to a place, his eyes were closed and he said कि I am in a place which is totally dark. I do not ओके, know what is happening. जी हमने कहा just when it is a dark, you just step out and see where is your environment. And ओके, this is actually happens. We do not say, we just guide the person. The person starts in telling us the story. He said he tries to step out. He's in the mother's womb. And when he was in the mother's womb, he was ओ, hearing basically something which was happening outside. Ki money will bring a bad thing. Something was happening outside, which he could hear in the mother's womb. ओ, So when he stepped outside and वो saw, रजिस्टर हो जाता जी बिल्कुल रजिस्टर है, है? your mothers can create the character of a child. एंड जब ओ, वो बाहर स्टेप आउट किया तो देखा उसकी जो मम्मी है जी, वो टीवी देख रही थी, टीवी में वो सीन चल रहा था। सो ओ शी वाज लिसनिंग टू दैट एक्चुअली। हाँ, सो दिस गॉट हिम हियर। ओ माय गॉड। तो फिर हमने उसका वो ठीक करके एंड देन उसको जितने भी उसके लाइफ के वो चीजें थी वो सारी क्लियर करी टिल द प्रेजेंट, एंड देन वी सेड ओके नाउ डू योर पेसिंग फॉर द फ्यूचर। ही डिड एंड देन इट वाज ऑल ओके। तो डॉक्टर साहब एक बात बताइए, मतलब एक बड़ी क्यूरियोसिटी है, आजकल लोगों को लाइफस्टाइल प्रॉब्लम बहुत होती है, बीपी हो गया, शुगर हो गया, मुझको दोनों चीजें। आई हैव बीन अ केस ऑफ हाइपरटेंशन जब मैं लद्दाख में था, और उसके बाद 8 इयर्स हो गए मुझको सुपर एनीमेट हुए, उसके बाद बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी हुई नहीं डॉक्टर साहब, तो शुगर भी बढ़ गई। तो इनका भी कुछ है कोई कोरिलेशन जी ऐसा? सर, जैसे आपकी ह्यूमन एनाटॉमी है जो आप लोग जी, बायोलॉजी में पढ़ते हैं, वैसे हमारी जो हिप्नोसिस में सिखाया जाता है एनाटॉमी है जो कि हम बॉडी सिंड्रोम्स में पढ़ते हैं। अच्छा, ओ, जी सर। जैसे कि मैं लाइक वी डू रेक्टिफाई पीपल फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स। ओ माय गॉड डॉक्टर साहब, वी ओ डू माय गॉड। रेक्टिफाइट फॉर ऑल द एलिमेंट्स वट एवर इट इज वी कमिट। यानी आप जो देखिए मैं, मेडिसिन चल रही है वो खाता रहेगा इंसान, लेकिन आपका एक साइड में हेड हाँ चलता रहेगा। अभी अच्छा, आपको मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। मैनिफेस्टेशन लोग बाग बहुत बोलते हैं, जी हाँ, जी करते हैं। बोलते हैं ना, आप सब हाँ, खुश हो जाते हैं। मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन जी, अच्छे भी होते हैं, बुरे हम्म, भी होते हैं। जी अगर जी आप डॉक्टर देखें, साहब। सपोज अ पर्सन, आई गिव यू टू एग्जांपल्स हियर। इज जी डॉक्टर सपोज अ पर्सन इज डूइंग सम वर्क, साहब। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, तुम जाओ। ये वो कह रहा है ओ, इन इज 19s एंड 20s एंड 30s में। इन हाँ, 40s ही विल स्टार्ट हियरिंग प्रॉब्लम। मैं कुछ अरे, सुनना नहीं चाहता, तुम जाओ। एक्चुअली हियरिंग प्रॉब्लम हो जाएगी उसको? ये हो ओ जाएगी। माय, ओ माय गॉड। तो डॉक्टर साहब फिर ये बीपी और शुगर, जो सब कि, सब सब सिरोसिस इज बेसिकली डिटैचमेंट फ्रॉम योर ओन सेल्फ, नॉट लाइकिंग योर सेल्फ। अगर आप माइग्रेन देखें जो आजकल बहुत लोगों को रहा, वो हेडेक, माइग्रेन माइग्रेन, जी डॉक्टर इट साहब। इज बेसिकली अ फाइट बिटवीन योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। येस और नो के झगड़े जिस आदमी के अंदर हो रहे होंगे, माइग्रेन लेके बैठ जाएगा, ओ, तो वो भी ठीक होता है। तो एवरी एलिमेंट, even the अच्छा, ailment which cannot, people say cannot be cured, हम्म। there is a thing through Brody syndrome you can cure it. तो मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब के सीधे शब्दों में कि जब मैं अगली बार छुट्टी में अम्बाला से लखनऊ आऊंगा,
आपसे मिलूंगा तो आई विल सीक सम रेमेडी नहीं, फ्रॉम यू फॉर उस माय ब्लड शुगर, सर क्योंकि जूम पे कर लेंगे आज जूम। आपने जो भी अच्छा। यू नो माई बेटर हाफ करेक्ट शी वॉज हैविंग व्हेन शी वॉज उनका ऑपरेशन हुआ था हार्ट अटैक का हर जी H1B1 जो भी खिलाता है इट वॉज जी। 14.6 ओह प्रेटी हाई। ठीक ठीक है एंड डॉक्टर ने बोला अगर आप हमारी उससे लेंगे तो यू विल टेक एटलीस्ट 2 years टू कम टू 10 हमारे डाइटिशियन का ओह कोर्स माय गॉड। करेक्ट सब हाँ डूज एंड डोंट सब चल रहे थे कि ये जी मत खाओ डॉक्टर ये साहब। मत खाओ ये मत खाओ ये मत खाओ ये मत खाओ व्हेन आई जी केम डॉक्टर बैक साहब। फ्रॉम दुबई तो उनको क्योंकि आम का सीजन था उनको आम अच्छा लगता था और आम खाओगे तो बहुत हो जाएगा ये खाओगे तो बहुत हो मतलब कुछ नहीं होने वाला मतलब आम खाओ एंड आई फिर। एम डूइंग द मैनिफेस्टेशन अभी 1 साल नहीं हुआ है उनके ऑपरेशन को शी वॉज इन टू 3 इंसुलिन्स प्लस ओह। 1 लेंटस करेक्ट हाँ। नाउ शी इज आउट ऑफ इंसुलिन एक लेंटस लेती हैं एंड इट हैज कम डाउन टू 6 आपने आम खिला दिया उनको? आम भी खिलाया अंगूर भी खिलाया डॉक्टर साहब। परसों वो आइसक्रीम खाई थी उसके बाद उनकी फास्टिंग थी सुबह अच्छा 75 अच्छा। सब खा रहे हैं आराम से सी मैनिफेस्टेशन दिस इज अमेजिंग डॉक्टर साहब। सो व्हेन यू मैनिफेस्ट थिंग्स लोग बाग जी। कहते हैं ना मेरे मैं तो सांस भी लेती हूँ तो मोटी हो जाती हूँ हाँ मेरे साथ भी यही है डॉक्टर साहब, मैं यही कहता हूँ। हाँ तो आप मोटे होते जाएंगे आप सांस लेते जाएंगे मैनिफेस्टिंग इट नो सर ओह आप दिस इज। मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना कन्ना साहब कि मैं सांस भी लूंगा तो मोटा होऊंगा तो आप सांस लेंगे मोटे होंगे हाँ डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं अगर नहीं खाता हूँ तब भी 80 केजीज रहता हूँ, खाता हूँ तब हाँ भी 80 केजीज रहता हाँ हूँ। तो सांस लेता हूँ तो ना तो यू हैव टू रीफ्रेम योर मैनिफेस्टेशन योर वर्ड्स दैट इज दिस व्हाई इज NLP कम्स इनटू पिक्चर दिस इज सो इंटरेस्टिंग डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक और मैं वर्ड देख रहा हूँ, होपोनोपोनो, मतलब इसको पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है, ये क्या चीज है? सर होपोनोपोनो इज बेसिकली एक हमारी हमको सिखाया गया था डॉक्टर ह्यूलिन ने अच्छा। अच्छा जो मतलब क्या नॉर्मली अगर जापानीज ह्यूलन, मतलब कोई नहीं नहीं जापानीज साइड ह्यूलिन की? नो 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 ही इज फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज ओके। ओके नाउ व्हाट हैड हैपेंड वाज बेसिकली कि आपने अभी बहुत लोगों को सुना होगा कि आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू दीज आर 4 सेंटेंसेस आपको बहुत मिलेंगे लोगों को बोलो सब कुछ ठीक हो जाता बोलते है हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। बट दैट इज जस्ट अ सरफेस लेवल how these words has to be used it is ho'opono it is was introduced by ho'oponopono and Dr. ओह Hewlin is the modern into ho'oponopono and what had happened the story behind this is there were जी। inmates in Africa जो कि हम्म they were into टोटली उनको माने उम्र कैद की सजा थी एंड वो खूंखार उन्होंने खून वून करके वेरी सब थे तो डॉक्टर हम्म, ह्यूलिन उनके वार्ड में भी कोई नहीं जाता था इतने डर के मारे खतरनाक थे? कि इतने खतरनाक अब ओह डॉक्टर माय गॉड। ह्यूलिन ने ये 4 लाइन को जीरो लिमिट्स के साथ काम करना शुरू किया ही डिड नॉट सी दी एनी ऑफ द पर्सन ओनली जी टुक देयर नेम एंड देन ही स्टार्टेड हीलिंग देम विदाउट लुकिंग एट देम व्हेन ही वेंट टू द बेसिकली उसने उन सबको कहा था कि आई विल हील दिस पीपल तो सबने बोला हाउ विल यू गो बोलते जस्ट गिव मी द नेम एंड देयर एज एंड एवरीथिंग वो दिया एंड ही स्टार्टेड डूइंग होपोनोपोनो एंड ये। विद दैट वो सारे के सारे ठीक हुए और वो ओह। जेल से बाहर होके नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं और वो जेल बंद भी हो गया तो डॉक्टर साहब ये जो चीज टेक्निक क्या, ये नई है या बहुत पहले से चली आ रही है? नहीं ये रिसेंट है सर 50s में रिसेंट है ये? मैंने। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके एक बार एक और हर एक चीज आपके बारे में इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है मुझे, न्यूरो आर्ट एंड मेटाफर, ये क्या जी चीज साहब देखिए कर्नल साहब ऐसा होता है आज की डेट में हर एक आदमी परेशानी से घूमता है है? जी करेक्ट जी एंड वो जो जाता है अगर सपोज दे वो साइकेट्रिस्ट के पास जाए तो क्वेश्चंस दे देते हैं आंसर करो सबको एक जैसे हम्म, क्वेश्चन होते हैं एंड यू जी। आंसर इट बट दिस इज बेसिकली मैपिंग ऑफ योर माइंड वो ब्रेन मैपिंग टाइप की चीज है कुछ ये? ब्रेन मैपिंग ऑफ योर माइंड थ्रू कलर्स थ्रू suppose I कलर्स। will say if you are into art and everything जी you जी जी। will MF हुसैन हाँ ने एक हाँ। पेंटिंग बनाई जी अब जी। पेंटिंग को आप लोग जैसे देख रहे हैं ओ ब्यूटीफुल पेंटिंग रेड ब्लैक ब्लू यूज किया एंड अ ब्यूटीफुल दिस पेंटिंग इज डिपिक्टिंग सीन एंड इट इज ऑप्शन इन मिलियंस हाँ मिलियंस में हाँ। ऑप्शन हो गई हो गई। बट यू सी द पेंटिंग एंड बिहाइंड इट चाहे वो जी रेनेसा की पेंटिंग हो चाहे वो किसी मोनालिसा की पेंटिंग हो किसी की भी जी हो जी डॉक्टर बट साहब। what was going in the mind of the painter यानी जब वो उस पेंटिंग को बना रहा था उस वक्त उसके दिमाग में क्या था? तो हम ओ। लोग उसकी माइंड मैपिंग करते हैं
And this mind mapping helps a lot in young adults, anybody, elders Hmm. also, cancer patient, any patient, it will help. Hmm. And with that, Hmm. you can easily understand the person. It helps a lot for autistic children. It helps a lot for ADHD children. जी. सब आप मैपिंग करके you can understand that we teach also and we interpret also. ओके डॉक्टर अगर साहब. आपके पास है कोई पेंटिंग तो दिखाए स्केच. मैं कभी कभी डॉक्टर साहब आई हैव बीन वेरी प्योर. मुझे 50 में से 5 या 6 नंबर मिलते थे. सो जितनी पुअर पेंटिंग उतना हमें अच्छा. अच्छा, तो मैं कभी कभी डॉक्टर साहब मैं आई जस्ट गिव इट इमेजिनरी रन. एक मैं आपको दिखाता हूँ. मैं भी बस आई दिखा दे, मैं आपको आई ब्रीफ बता दूंगा फिर बाद में तो आई बाकी इट इज डिस्क्लेमर्स. मैं अभी देखता हूँ कहाँ पे है ये. आपकी अ, वो दिखाएं. ये आपको कुछ दिखाई दिया यहाँ पर एक हाँ जी, पेंटिंग. एक दिखाई दिया कि एक डॉक्टर साहब आपने. मैं सीनरी वगैरह नहीं बना पाता हूँ मैं. नो, ये कुछ. यू आर वेरी मेथोडॉजिकल पर्सन. ओ. करेक्ट. यस. एंड यू ऑलवेज, you had thought something and you did something different. हाँ. जी जी डॉक्टर साहब. यस. Correct, sir? यस 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 You यस. had thought something in your life, but जी you ended up doing something different. बिल्कुल सही कहा आपने. Okay? दिस इज 100% ट्रू. अच्छा, उसके बाद जब आप देखते हैं कोई भी चीज, उसको आप विजुअल एंगल बहुत ज्यादा देते हैं. जी जी. करेक्ट सर? बिल्कुल डॉक्टर साहब. अच्छा. और उसके बाद आपके जिंदगी में जो भी चीज आती है, कभी एक दफा आया था कि यू वर इनटू अ टाइम व्हेन यू वर थिंकिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट. हाँ हाँ. इट जी वाज इन अ जी मिड टाइम, जो भी आपकी उम्र है उसको अगर बीच जी में डिवाइड कर दे तो उस टाइम पे आया था. जी जी बिल्कुल सही कहा आपने. वो आपके दिमाग में आया था. एंड देन, सिंस दो यू आर अ कर्नल, बट यू आर फैसिनेटेड बाय प्लेन्स, व्हिच आई कैन सी फ्रॉम द प्लेन. वो आ ही जाता है कहीं ना कहीं. हाँ हाँ, हैविंग वो द आ पायलट. जाता है. मगर आपको कभी कभी कोई अगर आदमी आपकी बात ना समझे तो आप गुस्सा भी हो जाते हैं, व्हेन इट इज नॉट डन कैलकुलेटिवली. बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब. आई गेट परटर्ब्ड. आपको बोला कि समझ क्यों नहीं रहा, सिंपल सी चीज है, व्हाट इज द प्रॉब्लम. जी एंड योर एम्बिशन जो था, आप जो जिस चीज से आप बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं वो एयरक्राफ्ट से. जी. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल. जी एंड देर आर थिंग्स इन योर लाइफ वेयर you do not know मैं क्या करूं. And that is the time you go into your cocoon and then you think how to come out of it. जी डॉक्टर साहब. Correct है सर? जी डॉक्टर साहब. And आपके लिए imaginations are of no use. You should be practical and achieve things. जी डॉक्टर साहब. ये है ना कुछ आपके साथ. जी जी जी. एब्सोल्युटली. And you understand binary codes very easily. अगर हाँ. आदमी आपको बात करे with binary codes, but in the sense calculative way, proper बिल, तरीके से, तो आप समझ बिल्कुल. जाओगे. बहुत अच्छे And से. you are a person जो कि would like to guide others rather to take instructions for others. ये बात सही है. Correct, sir? एब्सोल्युटली. And you love yourself a lot, but sometimes you get bored about yourself, about your looks. यस. Is correct ना साहब? तो ये तो अभी अपने करेक्ट. सिंपल है, बाकी तो साथ बैठेंगे तो बहुत सारी पढ़ देंगे इसमें हम आपका. डॉक्टर साहब ये तो मैं आज पहली बार देख रहा हूँ कि ऐसी भी कोई चीज होती है न्यूरो आर्ट. ये मेटाफर क्या चीज होती है डॉक्टर साहब? मेटाफर से अपने पेंटिंग में सब बना रहे हैं. अच्छा 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 अच्छा. दे आर तो वो मेटाफर्स. होता है, और फिर हम मेटाफर वर्ड से भी पकड़ लेते हैं. मेरी अच्छा. जिंदगी पहाड़ के समान मुश्किल है, पहाड़ का मतलब, एंड देन वी कैच इट. ओके. तो भी अच्छा आपने अच्छा. पहले मुझे चैलेंजिंग बोला, हम लोग वर्ड नहीं लिया ना, हमने कहा कि हाँ व्हाट डू आपने यू कहा कि. अंडरस्टैंड. विल ओह. नॉट टेक एनी ऑफ दोस वर्ड्स. ये एनएलपी को हम जोड़ते हैं साथ में. ओह माय गॉड. ये तो बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है डॉक्टर साहब. एंड आई एम श्योर. तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसके अलावा कुछ एक और अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं. रेकी ऑफ कोर्स आई नो अबाउट. टैरो भी है. और ईएफटी क्या चीज़ है डॉक्टर साहब? ईएफटी इज इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जिसकी मैंने किताब भी लिखी है. अच्छा. कि क्या होता है साहब, कि ये बेसिकली आप देखिए, हर एक आदमी, जैसे मैंने शुरू में बताया, जी कि डॉक्टर साहब. उसका एक अपना पर्सनल कॉर्नर होता है. बिल्कुल होता है. वो उसका बॉडी सिंड्रोम्स में उसकी एलिमेंट बन जाता है. जी. एंड सम पीपल कम एंड विजिट द पर्सन, सम पीपल डू नॉट विजिट. करेक्ट. रीजंस दे नो, क्योंकि कोई ब्लैकमेल कर लेगा, कैसा इंसान है. सो वी ट्रेन पीपल ऑन दैट. विद दैट योर इमोशंस गेट चार्ज अप एंड यू रिलीज देम. You do ओके. not know
where they are stored, how they are stored, and what are they. अगर मैं आपसे पूछूं आपके उस उम्र 10 में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, यू नॉट, हम्म, क्या अच्छाइयाँ हुई थी वो भी नहीं पता होंगी, सिर्फ पिटाई पुटाई सब पता होगी बस। हाँ तो डॉक्टर साहब। वो सारी चीजें हैं, तो वो आपके इमोशंस जो स्टक हो गए हैं, वो ईएफटी के थ्रू निकल जाते हैं। और उससे आपकी जितनी बॉडी सिम्टम्स की एलिमेंट है, जैसे आर्थराइटिस हो गया, माइग्रेन हो गया, जो भी पेन्स वेन्स हैं, सब क्लियर होते चले जाते हैं। दिस इज अमेजिंग डॉक्टर साहब। सो वी लेकिन डॉक्टर डू साहब इट आप इन। बताइए कि आप कह रहे हैं अब जैसे मुझसे कोई कहे भाई वो 10 साल की उम्र में था, तो क्या वो चीज कहीं स्टोर्ड है? लेकिन मुझे याद तो नहीं ओह आती। यस 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 यस। अच्छा। हाँ, यू कैन चेंज योर रियलिटी बेसिकली, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग इट। अब आपको एक एक्सरसाइज कराता हूँ। आप अपने दोनों हाथ ही नापें। जी डॉक्टर साहब। दोनों इक्वल हैं? अ, मुझे करीब इक्वल ही होते हैं सर थोड़ा सबके। सा करीब करीब इक्वल ही लग रहा है अभी। हाँ ठीक है ना? जी। सच्ची देखिए, अब आपको मैं देखता हूँ, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल हाउ यू कैन चेंज योर रियलिटीज जी। एंड हाउ यू कैन देन चेंज योरसेल्फ। जी डॉक्टर साहब। सो अपने राइट हैंड को देखें, लेफ्ट जी हैंड को डॉक्टर अलग साहब। रख लें, जी एंड डॉक्टर साहब। राइट हैंड को फास्ट रिपीट करें मेरे साथ एटलीस्ट 50 टाइम्स, हाँ जो हाँ। मैं बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर माई साहब। राइट हैंड इज लॉन्गर देन माई लेफ्ट हैंड। ओह, अच्छा ये मैं अपने आप को समझाऊं बार। आप नहीं नहीं नहीं, अब आप रिपीट करेंगे मेरे साथ फास्ट फास्ट। ओके। Just look at your focus on your this thing, जी। right hand, and ओके। just start repeating along with me. My right hand is taller than my, longer than my left hand. My right hand is My longer right than hand is my, longer than my longer, left hand. My my right right hand hand is is longer longer. than my left Fast, hand. My fast. right hand. My Longer right than hand my is left hand. longer than my left hand. My right hand is longer than my left hand. My right hand is longer than my Longer left than hand. my right hand. Right अब hand करते जाएं, is करते जाएं. longer than left hand. My right hand is longer than my left hand. My right hand is longer than my left hand. My right hand is longer than my left hand. My right hand is longer than my left hand. My right hand is longer than my left hand. My right hand is longer than my left hand. चलिए, My अब right hand is थोड़ा longer than समय my किया left है, hand. अब देख, अब नापें। अभी थोड़ा सा कुछ चेंजेस आए होंगे। हो गया जी? ये करीब 2 या 3 मिलीमीटर मेरे को लंबा दिखाई दे रहा है। देखिए, सो यू कैन चेंज योर रियलिटीज। तो क्या ये विजुअल ही कुछ मेरे को हो रहा है या मतलब ये एक्चुअली? Your mind is very strong. It can change your realities. EFT say you can change your past heals, wounds, and everything. You can heal them. बट ये You विद can इन नो change your. टाइम ऐसा कैसे हो रहा है कि मुझे ये 2-3 मिलीमीटर लंबा दिखाई दे रहा है ये मतलब? होता है सर, दिस इज बेसिकली, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, योर माइंड इज वेरी स्ट्रांग। Your mind will is so strong that it can bring things for you, it can clear things from you, it can clear all the ailments if you are basically जी। working with it as a friend. ओ। अभी अगर आप पढ़ें कि आप डॉक्टर के पास जाते, प्लेसिबो इफेक्ट तो आपने पढ़ा ही हाँ है। वो मालूम, प्लेसिबो वो तो पता है। खाली ठीक है ना, पानी के ठीक हो गया इंजेक्शन ना? लगा दो और बोलो कि ये है, ठीक हाँ, ठीक हो है। गया। सो कैसे हो गया? तो बिलीफ सिस्टम है ना साहब। बिलीफ सिस्टम। सो क्या? आपका बिलीफ सिस्टम जिस दिन आपने अपने आप को किया, और ईएफटी किया या इस कुछ भी किया, कोई भी हिप्नोसिस या एनएलपी कुछ भी किया, यू विल इमीडिएटली ओवरकम ऑल द थिंग्स। सो ईएफटी में क्या होता है, वंस यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, यू कैन डू इट इन योर ओन वे, एट योर ओन कंफर्टेबल जोन, एंड यू डू नॉट हैव टू गो टू एनी प्लेस। And when you do it, जी डॉक्टर। you are grown out of whatever the ailments were there, and you will see within 7 to 21 days आपकी वो एलिमेंट भी गई, आप भी ठीक, सब कुछ ठीक। माइग्रेन वगैरह के लिए तो बहुत इमीडिएट इफेक्ट करता है ये। बहुत इस ही पे मेरा यूट्यूब पे वीडियो भी है ऑन माइग्रेन, हाउ टू वर्क ऑन इट। हाँ डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि आप बाकी फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस, क्या है आपका कौन सा चैनल है विच पीपल कैन डिजाइन योर डेस्टिनी। अच्छा, डेस्टिनी विद आई है ना? डेस्टिनी बताएं। जरूर जरूर। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि लोग पीपल इन देयर ओन टाइम कैन सी द ओन कन्वीनियंस टाइम दे लर्न फ्रॉम मी, एंड ऑफ whatever it is, and then after that I do meditation। किसको जो होता है, हमको मेडिटेशन नहीं होता, वी डू ईएफटी एंड टेक देम इनटू मेडिटेशंस। मेडिटेशन बैठे होंगे आराम से। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, क्या ये चीजें आप जूम मीटिंग के ऊपर करते हैं या फिजिकली? जी जी जी, जूम पे भी करते हैं, फिजिकली भी करते जूम हैं। पे, हाँ, क्योंकि आज के ज़माने में ट्रैवल करना थोड़ा हो जाता है, बट हम्म। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि ये जूम के ऊपर करने से बहुत से लोगों को फायदा भी हो जाएगा। एंड हमारे स्पेशली जीना फैमिली में डॉक्टर साहब, हमारी जो जीना फैमिली है इसकी जी। प्रेजेंस 23 कंट्रीज में है अभी। वाह। and around 68,000 people are associated. This is not a networking kind of a organization. This is an organization which is flat structure. कोई बॉस नहीं है। I am not reporting to anyone, but I am responsible for certain things in which I have my core competence, like world music. I'm actually a music maker.
वो सो मैंने देखा, आपने बताया, वो हाँ। मैंने सो वो मैं कुर्सी संभाल रहा हूँ वाइस चेयरपर्सन की। इसी वेरी नाइस तरीके सर। से बाकी बहुत से एम्बेसडर्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ डॉक्टर साहब। और हमें सबसे अच्छी खुशी की बात है कि आप जैसा इंसान जुड़ गया हमारे साथ। आई मीन सर थैंक यू दिस सर। इज दिस इज अमेजिंग कि कहाँ से कहाँ तक की, और कई एक चीजें तो पहली बार पढ़ने में आ रही हैं डॉक्टर साहब, एंड इट्स सर अ ग्रेट लर्निंग फ्रॉम देखिए, यू। अभी कभी कभी क्या होता है, किसी आदमी को फोबिया है जी। स्टेज का, जी डॉक्टर साहब, होता है बहुत लोगों को। होता है ना स्टेज होता है। फोबिया, और वैसे बड़े कॉन्फिडेंट, हाँ हाँ हाँ, वहां पे बाकी आके स्टेज पसीने फोबिया। छूट जाते हैं। तो हम लोग बेसिकली समझ जाते हैं कि जैसे मैंने कहा, एक्शन हैज अ उसका कंडीशनिंग, ये बच्चे को करिए। पिटाई हुई है व्हेन द चाइल्ड वाज स्मॉल, पोएम के लिए परफॉर्म करने के लिए या किसी चीज को परफॉर्म करने के लिए वो कर नहीं पाया, और मम्मी डैडी ने उसको आंखें दिखाई हैं या पिटाया, जो वट एवर इट इज, जो रह गया दिमाग में उसके। वो दिमाग में रह गया। एंड देन अगर वो हमारे साथ जुड़ते हैं, हम ईएफटी कराना सिखा देते हैं, सो बिफोर बिल्कुल। परफॉर्मेंस ही डज द ईएफटी एंड गोज, ही विल परफॉर्म। दिस इज सच अ गुड थिंग डॉक्टर साहब। पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली बात हो गई है तो। वो तो बिल्कुल हम लोग लोग करते बाग हैं ना बोलते सर हैं ना कभी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। तो ये तो आपने एक थेरेपी सेशन किया है और उसकी पर्सनालिटी इस तरीके से You बेहतर can हो। transform a person very easily in 120 minutes. Not, I'm not talking about ये motivation नहीं कर रहा. Motivation is outside inside. Transformation is inside outside. So you will glow from your inside, you grow from your outside. है ना, 120 मिनट से उसके लिए पर्सनल सामने आना पड़ता है बंदे को, एंड हाँ, हंड्रेड यानी ट्वेंटी वो दो मिनट्स में घंटे ही, का सेशन आपके सामने बैठ के। नहीं दो, वो उसके पर डिपेंड करता है सब। डिपेंड आई होगा। डोंट गो बाय टाइम, बिकॉज उस टाइम पे वो हो पाया कि नहीं, वो अपनी घड़ी देख रहा होगा। नो, आई हाँ। सिट विद द पर्सन एंड देन जी। टिल द टाइम इज ट्रांसफॉर्म। वाह, तो डॉक्टर साहब किसी को अगर आपके साथ साक्षात्कार करना हो वन ऑन वन, तो उसको लखनऊ आना पड़ेगा, कहाँ आना पड़ेगा? अगर से मुझे बुलाएगा तो सारे सारे खर्चे उसे उठाने पड़ेंगे, लखनऊ आएगा तो अपना लॉजिस्टिक। खर्च उठा के दैट्स अ फेयर डील डॉक्टर आएगा। साहब। वाह डॉक्टर साहब। एंड डॉक्टर साहब सबसे अच्छी एक और चीज मैं पढ़ रहा हूँ कि दिस होलिस्टिक client centered approach has led you to receive multiple prestigious awards across the Gulf, पूरे गल्फ कंट्री में। अच्छा। जी। बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कोच, बेस्ट चाइल्ड एनएलपी कोच, बेस्ट इमेज कंसल्टेंट एंड बेस्ट काउंसलिंग कोच। इमेज कंसल्टेंसी में डॉक्टर साहब मतलब आप क्या उसकी एक सोशल इमेज बनाते हैं? नहीं नहीं सर, जैसे था अभी हम जी। लोग के यहाँ पे कैंसर पेशेंट्स थे, जी। एंड हमारे यहाँ ब्यूटी पेजेंट हुआ था खातून वगैरह सबका, जी। दुबई में। सो जी। अब वो लोग बेचारे, दे ऑल आर गॉन इनटू, लाइक उनका कॉन्फिडेंस हिला हुआ होता है ना सर, सही बात है। कीमोथेरेपी चल रही, सब कुछ चल रही है। सो वी हैड अ ब्यूटी शोज एंड देन आई वाज कंसल्टेंटिंग विद अ कंसल्टेंट विद देम टू बिल्ड देयर इमेज, सो दैट दे कैन वॉक ऑन द रैंप इन फ्रंट ऑफ thousands of people. ओह। So I was working with them with their image, and they were all confident. When it came, I had to work with them for around 4 months, 4.5 months. And when they walked on the ramp, they were all confident. And देखने शो सारे के सारे दुनिया के अच्छे अच्छे बंदे आए हुए थे। एंड देन उसमें तो मैंने इमेज कंसल्टेंसी में ऑटिस्टिक बच्चों की भी रैंप वॉक करवा दी थी। माय गॉड डॉक्टर साहब, आई मीन मैं इतना लकी महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। माय इंफेंसिटी, माय यंगर डॉटर इज आल्सो एन ऑटिस्टिक गर्ल। शी इज 27 तो इयर्स। आप ये तो ब्रेन मैपिंग कराए क्रेयॉन से, वो आपको मैं अच्छा। सिखा दूंगा ठीक वन ऑन है। वन, आप उसको देखिए, देन यू विल अंडरस्टैंड हर बेटर। ठीक है, आई बी ग्रेटफुल डॉक्टर साहब। ये तो वो आपने बड़ी समझ अच्छी लेंगे बात कर दी। आप। और आपने इतना एक्सपीरियंस आपका डॉक्टर साहब, गल्फ एंड ऑल दैट, आई एम श्योर गल्फ के शेख जो है वो दे मस्ट बी इन लव विद हाँ यू। सब बड़े सारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स किए हैं, बड़े सारे उनके साथ प्रोग्राम्स किए हैं। नेचुरली, एंड यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड देयर लाइव्स। कितनी बड़ी बात है डॉक्टर साहब। नौकरी तो कोई भी कर लेता है, लेकिन उस जी बिल्कुल। ट्रांसफॉर्मेशन लाना एक बड़ा। हाँ वो रिपीट होना नहीं चाहिए, एक बार आपने ठीक किया किसी को, जी। रिपीट नहीं आना चाहिए, दैट इज नहीं आना ट्रांसफॉर्मेशन। चाहिए, नहीं जी। डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा मतलब लगा। टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, वरना तो शायद पूरी रात भी बात ना खत्म ना हो, बिकॉज इतनी चीजें हैं। आप मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी हैं। डॉक्टर साहब चलने के पहले आप ये बताइए कि आप कहते हैं ना कि दी पर्ल्स ऑफ विजडम, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? देखिए सर, पर्ल्स ऑफ विजडम इज, यू शुड गो बियॉन्ड योर नेम, बियॉन्ड द लेबल, बिकॉज नेम एंड लेबल मेक्स यू लिमिट, स्काई इज द लिमिट। इफ यू वांट टू बिकम लिमिटलेस, गो जी बियॉन्ड डॉक्टर। दैट, then only you will find your true self. You will connect with your true self and you will glow from inside. You have जी to डॉक्टर grow साहब। from outside. एक्सेलेंट डॉक्टर साहब, And एक्सेलेंट। then from today onwards, check all your actions to your conditioning. You will see how the shift will be in your lifestyle. वाह डॉक्टर साहब।
Dr. Saab, thank you very much You're from the core welcome, of my Colonel heart and Saab. on Same behalf of here. entire Zena family. I express my gratitude, and The I'm sure, same Doctor, here. we will Likewise. have a couple of more sessions because it affects everyone. आपके जो सुझाव हैं और जो तो आपके आपका एडवाइस अटक है गया सर, आपका वो अटक गया. आई कुड नॉट हियर सर व्हाट यू सेड इन द मिडिल. या आई सेड के जो आपका एक्सपीरियंस है जो कुछ हुआ है उससे मतलब यू कैन टच एवरीबॉडीज लाइफ सो वी विल हैव सम मोर सेशंस ऑन दिस यस सर. इंडिविजुअली और आज के लिए हम अपने सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं And sir, I am just open. Any questions comes to you, let me know. If people आई have विल questions related to their lifestyle and living जी style, मुझे श्योर बता दें. I will easily can give answers to them on जी one on one या तो ग्रुप में डाल दूंगा. ग्रुप में तो नहीं करेंगे, माना अच्छा नहीं लगेगा. हाँ If हाँ they हाँ want, you tell me. I'll give वन them ऑन वन answers so वो that I ज़्यादा can ठीक reply one on one and they will understand things. If they want any consultancy or anything, I जी will डॉक्टर assist them. और अगर आप चलाना चाहते हैं EFT का एक दो sessions with the साहब Zena family, I can do it on Zoom. They can join वंडरफुल and we can वंडरफुल do it in वील प्लान bulk. दैट वे No डॉक्टर साहब problem. वो भी कर सकते हैं. थैंक यू डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच नमस्ते सर. थैंक यू ओके सर. थैंक यू. थैंक यू थैंक यू.